So today student, in context with spin orbit interaction energy, continuation of that article spin orbit interaction energy. In today's lecture we are to derive expression for DTS. DTS full form is doublet term separation. Doublet term separation P doublet की भी हो सकती है, D doublet, F doublet, G doublet and so on so forth. And we have been talking about single valence electron. Single valence electron spin is half. J की पॉसिबल वैल्यू L प्लस एस से लेके L माइनस एस, तो L प्लस हाफ से लेके L माइनस हाफ, डिफरेंस बिटवीन टू इज 1. चेक कर सकते हैं. L प्लस हाफ माइनस ब्रैकेट में L माइनस हाफ इज 1. So only two values of J are possible. So two cases will be dealt. Case number 1 when J is L plus half. Case number 2 when J is L minus half. And we talked about spin orbit interaction energy and we derived this expression in previous video. Gamma is equal to A prime into J star square minus L star square minus S star square over 2. And J star square is J into J plus 1, L star square is L into L plus 1, S star square is S into S plus 1. Case 1 is J is L plus half. In place of J we write L plus half. J L plus half plus 1 is L plus 3 by 2, L into L plus 1, S spin is half. So half plus 1 3 by 2 divided by 2. Open the bracket. Do calculation, comes out to be L by 2. Therefore gamma is equal to A dash into this. और ये वैल्यू सेपरेटली वर्कआउट किया फॉर J इक्वल टू L प्लस हाफ. दिस इज हाउ मच? L by 2. But you will notice gamma I have replaced by gamma dash. Gamma becomes gamma dash when J is L plus half. Gamma becomes gamma double dash when J is L minus half. And during spin orbit interaction energy derivation, I told you J equal to L plus half lies above with respect to hypothetical energy level, and J equal to L minus half lies below with respect to hypothetical energy level. Second case is J is L minus half. Again we work out this. J star square, you know, J into J plus 1. In place of J L minus half, J की जगह L minus half plus 1. L minus half plus 1 is L plus half. Minus L into L plus 1. Minus spin तो वही है, half into half plus 1 divided by 2. A minus B into A plus B, A square minus B square, bracket open किया, minus 3 by 4 over 2. Simplification gives rise to this. And I told you for J equal to L minus half, gamma is gamma double prime, which is formula is A prime into this quantity, and the factor within the bracket is minus into L plus 1 over 2. Now DTS stands for doublet term separation. Yeah, difference in energy. DTS doublet term separation is gamma prime minus gamma double prime. Gamma prime is A prime L by 2 minus gamma double prime is A prime into minus into L plus 1 over 2. Minus minus plus A prime over 2 common, 2L plus 1, 2 simplification, 2 common into L plus half, 2 से 2 cancel, तो ये डेल्टा गामा आ गया. And in previous video you know A prime is R alpha square Z to power 4 divided by N cube L into L plus half into L plus 1. ये L plus half से L plus half cancel. So finally we arrived expression of DTS doublet term separation R alpha square Z to power 4 over N cube L into L plus 1. ये R वही है जो R suffix infinity. Suffix infinity का मतलब एक reminder है for all of us that this is Rydberg constant for nucleus having infinite mass. And R suffix infinity की value is known to you. Alpha is Sommerfeld fine structure constant which is 1 over 137. Alpha is unitless and dimensionless. Alpha does not carry any dimensional formula. Rydberg कांस्टेंट की यूनिट सेंटीमीटर -1. जब वो वैल्यू पुट करते हैं तो
4 इंटू जेड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई एन क्यूब एल इंटू एल प्लस 1 सेंटीमीटर माइनस 1। तो आप देखेंगे डीटीएस डबल टर्म सेपरेशन जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जेड इंक्रीजेस इट विल इंक्रीज, एन क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एन अगर एल कांस्टेंट है तो एन के साथ वेरिएशन है, एन कांस्टेंट है तो एल के साथ वेरिएशन है। सो फॉर गिवन एल एन इंक्रीज करने से डेल्टा गामा विल डिक्रीज, फॉर गिवन एन एल के इंक्रीज करने से डेल्टा गामा विल डिक्रीज। नाउ वी टॉक अबाउट डबलेट, पी डबलेट, एस डबलेट कभी नहीं होता है, एस सिंगलेट होता है, लेकिन पी डबलेट है, डी डबलेट है, एफ डबलेट है। सो लेट अस टॉक अबाउट पी डबलेट। एल इज 1, पी एनर्जी स्टेट, एल इज 1, स्पिन इज हाफ क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, और जे की पॉसिबल वैल्यू एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस, 1 प्लस हाफ से लेके 1 माइनस हाफ। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन होता है, ये सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट, ये 2s प्लस 1 क्या होता था स्टूडेंट, मल्टीप्लिसिटी, एन एस इज हाफ तो मल्टीप्लिसिटी कितना होगा 2, एल इज 1 तो पी, और जे की 2 पॉसिबल वैल्यू है, सफिक्स 3/2 और ये सफिक्स हाफ, यानी ये 2 एनर्जी स्टेट्स ऑफ 2 एनर्जी स्टेट्स, namely this is 2p 3/2 energy state, 2p 1/2 energy state corresponding to L is 1, S is half. So if there is no interaction between spin and orbital motion, then hypothetical energy level is represented by gamma 0. So gamma का formula जो है that is a prime into j star square minus L star square minus S star square over 2. ए और पी एनर्जी स्टेट की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट पी डबलेट, एंड पी एनर्जी स्टेट मीन एल इज 1, स्पिन इज हाफ, जे की पॉसिबल वैल्यू दीज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ जे 3/2 है। व्हेन आई टॉक अबाउट फॉर 2p 3/2 के लिए ये वैल्यूज है, एल के ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, एस स्पिन क्वांटम नंबर, जे टोटल या इनर क्वांटम नंबर, और ए प्राइम जे स्टार स्क्वायर इज जे इंटू जे प्लस 1, यानी 3/2 इंटू 3/2 प्लस 1, यानी 3/2 इंटू 5/2 15/4, माइनस एल स्टार स्क्वायर यानी एल इंटू एल प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, माइनस एस स्टार स्क्वायर एस इंटू एस प्लस 1 ओवर 2। तो ये ए प्राइम ओवर 2 आ गया। नाउ आई टॉक अबाउट सेकेंड एनर्जी स्टेट ऑफ पी, यानी 2p हाफ। 2p हाफ के लिए क्वांटम नंबर लिखिए, L इज 1, 2p हाफ के लिए स्पिन क्वांटम नंबर इज हाफ, टोटल क्वांटम नंबर इज सफिक्स नीचे वाला देखते हैं j हाफ। फिर वही फॉर्मूला j स्टार स्क्वायर इज j इंटू j प्लस 1, यानी हाफ इंटू हाफ प्लस 1, माइनस L इंटू L प्लस 1, 1 इंटू 1 प्लस 1, माइनस S इंटू S प्लस 1 ओवर 2, तो माइनस a प्राइम। अगर प्लस साइन आ रहा है तो इसका मतलब हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल के विद रिस्पेक्ट टू अबव है, अगर माइनस साइन आ रहा है तो इसका मतलब हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल के विद रिस्पेक्ट टू डाउन है। तो 2p 3/2 प्लस साइन रेलेवेंस मीन 2 प्लस साइन मीन दिस गामा प्राइम, यानी 2p 3/2 का जो गामा प्राइम है और 2p हाफ के कोरस्पोंडिंग गामा डबल प्राइम सिंबल है, तो 2p 3/2 के कोरस्पोंडिंग गामा प्राइम यानी a प्राइम ओवर 2, 2p हाफ के कोरस्पोंडिंग गामा डबल प्राइम माइनस a प्राइम यानी बिलो। अगर स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी ना होती तो लेवल हैव बीन रिप्रेजेंटेड बाय दिस गामा 0 अनस्प्लिटेड लेवल, लेकिन when spin orbit interaction energy is taken into account, then 2p 3/2 will not longer here, rather 2p 3/2 की शिफ्टिंग इसके विद रिस्पेक्ट टू अबव होगी और 2p हाफ की शिफ्टिंग इसके विद रिस्पेक्ट टू बिलो होगी। दोनों अमाउंट इक्वल नहीं है, अनइक्वल अमाउंट। 2p 3/2 ऊपर शिफ्ट होगा कम अमाउंट से, 2p हाफ नीचे शिफ्ट होगा ज्यादा अमाउंट से, यही p डबलेट है। नाउ वी विल प्रोसीड फर्दर। कई बार ये क्वेश्चन भी आता है, स्केच p डबलेट। p डबलेट स्केच करिए एंड शो डीटीएस डबलेट टर्म सेपरेशन दिखाइए, डबलेट ये डबलेट है, टर्म सेपरेशन दिखाइए कि ये कितना है इस रिलेटिव इसके विद अनस्प्लिटेड लेवल के विद रिस्पेक्ट टू कितना ऊपर है, ये कितना अनस्प्लिटेड लेवल के विद रिस्पेक्ट टू नीचे है। नाउ वी टॉक अबाउट डी डबलेट। डी डबलेट मीन L is 2, स्पिन तो हाफ ही है और J की पॉसिबल वैल्यू L प्लस एस L माइनस एस, 2 प्लस हाफ से 2 माइनस हाफ, 5/2 3/2, डिफरेंस बिटवीन 2 is 1। स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन के मुताबिक 2s प्लस 1 इज मल्टीप्लिसिटी, L की वैल्यू 2 है तो ये D एनर्जी से नीचे सफिक्स J आते हैं, तो ये जो है D डबलेट है। इसी तरीके से जैसे हमने ये फार्मूले फिर दोबारा लगाएंगे
2d 5/2 के लिए लिखेंगे L की वैल्यू, S की वैल्यू, J की वैल्यू, फिर ये निकालेंगे, फिर लिखेंगे 2d 3/2 के लिए फिर S की वैल्यू, L की वैल्यू, J की वैल्यू, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे और देखेंगे कि 2d 5/2 कितना ऊपर शिफ्ट हुआ इसके विद रिस्पेक्ट टू, 2d 3/2 कितना नीचे शिफ्ट हुआ इसके विद रिस्पेक्ट टू, फिर वो स्केच करेंगे, फिर वो डायग्राम बनेगी स्केचिंग ऑफ डी डबलेट। इसी तरीके से हमें एफ डबलेट को स्केच करना है। स्टूडेंट डी डबलेट की बात कर रहे थे, 2d 5/2 एंड 2d 3/2 doublet term separation. We are to now sketch D doublet. I mean to say we are to draw fine structure. We are to find out fine structure separation due to spin orbit interaction for D doublet. D का 2d 5/2 है और एक 2d 3/2, दो स्टेट्स थी D की। कैपिटल एनर्जी स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D। डी एनर्जी स्टेट है तो L is 2, स्पिन तो ये मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 is 2, तो S is half। पहले तो क्वांटम नंबर लिखिए एनर्जी स्टेट के, और जो नीचे वाला सफिक्स होता है J होता है, J is 5/2, ये फॉर्मूला आपको बताया था। J स्टार स्क्वायर J into J + 1, L स्टार स्क्वायर L into L + 1, S स्टार स्क्वायर S into S + 1। S स्पिन क्वांटम नंबर, L ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, J is टोटल या इनर क्वांटम नंबर। अब J की वैल्यू 5/2 तो 5/2 into 5/2 + 1, L into L + 1, 2 into 2 + 1, S into S + 1, half into half + 1 over 2, सॉल्व करके ये आ जाएगा। 2d 3/2 के लिए स्टूडेंट L is 2, S तो हाफ ही रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो D है, और J की वैल्यू नीचे सफिक्स 3/2, फिर फॉर्मूला वही है पुराना फॉर्मूला, लेकिन ये ध्यान दें हायर J कॉरस्पॉन्ड टू गामा डैश, लोअर J कॉरस्पॉन्ड टू गामा डबल डैश। ये टर्म वैल्यू का सिंबल है। Gamma prime is term value for J is equal to 5/2, gamma double prime is term value for J equal to 3/2। डबल प्राइम हमेशा लोअर J के लिए होता है और हायर J के लिए सिंगल प्राइम नोटेशन होती है। सिंगल प्राइम मेंट फॉर हायर J, डबल प्राइम मेंट फॉर लोअर J। माइनस का मतलब ये जो 2d 3/2 है ये हाइपोथेटिकल के विद रेस्पेक्ट टू डाउनवर्ड शिफ्ट है। अगर गामा प्लस में आ रहा है जैसे गामा डैश प्लस A डैश है तो प्लस का मतलब गामा 0 के विद रिस्पेक्ट टू अपवर्ड शिफ्ट है, तो ये डी का डबलेट है। नीचे फिगर का टाइटल भी लिखा है फाइन स्ट्रक्चर सेपरेशन। दिस इज फाइन स्ट्रक्चर सेपरेशन, व्हाई, ड्यू टू विच इंटरेक्शन, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। सिमिलरली स्टूडेंट मैंने अभी तक आपको पी का डबलेट बताया, यानी पी में भी फाइन स्ट्रक्चर सेपरेशन ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन अभी ड्रॉ किया। फाइन स्ट्रक्चर सेपरेशन ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन डी डबलेट में स्केच किया, लेकिन ध्यान दे डेल्टा गामा की वैल्यू 0 होती है फॉर एस एनर्जी स्टेट, क्योंकि एस एनर्जी स्टेट में सिंगलेट होता है, वहां डबलेट की फॉर्मेशन नहीं होती। अब बारी आती है एफ डबलेट। एफ में एल की वैल्यू 3, एस तो हाफ ही है, जे की पॉसिबल वैल्यू एल प्लस एस, एल माइनस एस, 3 प्लस हाफ से 3 माइनस हाफ, यानी 7/2 एंड 5/2। तो ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन के कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लिसिटी 2s + 1 2, L3 है तो एफ एनर्जी स्टेट, नीचे J का वैल्यू ये हायर J के लिए सिंगल प्राइम, लोअर J के लिए डबल प्राइम, लोअर J के लिए डबल प्राइम। अब ये आप खुद नाउ यू शुड बी एबल टू वर्क आउट, आप वर्क आउट करिए कॉपी पे। ये गामा प्राइम 3a-2 कैसे लिखा, पहले तो इसके क्वांटम नंबर लिखेंगे, S is half, L is 3, J equal to 7/2, ये फॉर्मूला लगाइए आ जाएगा। फिर 2f 5/2 के लिए क्वांटम नंबर लिखे, S is half, L is 3, J is equal to 5/2, इस फॉर्मूले में इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये आ जाएगा। माइनस मीन डाउनवर्ड शिफ्टिंग, प्लस मीन अपवर्ड शिफ्टिंग। तो ये फाइन स्ट्रक्चर सेपरेशन ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन इन केस ऑफ एफ डबलेट। अब ये न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक न्यूमेरिकल जरूर आ जाता है इसका स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी का। इफ डबलेट स्प्लिटिंग ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये n होता है n, ये मल्टीप्लिसिटी, ये J की वैल्यू 2 2p 3/2 से ट्रांजिशन जारी है 2 2p हाफ ऑफ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम इज 5.84 सेंटीमीटर -1।
how much will be the corresponding separation for hydrogen? यानी डबलेट स्प्लिटिंग, यानी वही है डीटीएस, डबलेट टर्म, कोई डबलेट स्प्लिटिंग बोलता है, कोई डबलेट टर्म सेपरेशन बोलता है, कोई टर्म डिफरेंस बोलता है, ऑफ वन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन एटॉमिक सिस्टम तो है बीट हाइड्रोजन, या बीट सिंगली आयोनाइज हीलियम, या बीट डबली आयोनाइज लिथियम, या बीट ट्रिपली आयोनाइज बेरिलियम, ड्यू टू स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन is given by ये फॉर्मूला अभी मैंने डिराइव किया था अंडर द हेडिंग स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी। नाउ फॉर सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम Z is 2, फॉर हाइड्रोजन Z is 1। अब N फिक्स है, L P का फिक्स है, L कांस्टेंट, N कांस्टेंट, 5.8 फॉर वैसे कांस्टेंट, तो डेल्टा गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एटॉमिक नंबर। सो डेल्टा गामा सफिक्स हीलियम प्लस प्रोपोर्शनल टू हीलियम के एटॉमिक नंबर की पावर 4, डेल्टा गामा सफिक्स हाइड्रोजन प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर की पावर 4। हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, हीलियम सिंगली आयोनाइज्ड के सामने हीलियम का एटॉमिक नंबर, पावर 4 फॉर्मूले की डिमांड है, और अपस्टेयर में Z की पावर 4 है। तो ये जो है 16, और हमें ये गिवन है हीलियम प्लस के केस में, हीलियम प्लस के केस में डीटीएस दिया हुआ है, और हाइड्रोजन के केस में डीटीएस पूछ रहे हैं। सो हाइड्रोजन के केस में डीटीएस यानी डबलेट स्प्लिटिंग कितनी आ जाएगी, या डबलेट टर्म सेपरेशन कितनी आ जाएगी, ये उस तरफ आ जाएगा 1/16 टाइम डेल्टा गामा सफिक्स हीलियम प्लस, डेल्टा गामा सफिक्स हीलियम प्लस क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन के केस में जो डबलेट स्प्लिटिंग होगी या टर्म डिफरेंस होगा वो 0.365 सेंटीमीटर -1। तो ये आंसर है। एक और क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, प्रैक्टिस हो जाएगी। डबलेट स्प्लिटिंग ऑफ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ये बात किसी बुक ने 5.82 लिखा हुआ, किसी बुक ने 5.84 लिखा हुआ, वो डजंट मैटर, डेसिमल के बाद तीसरे डिजिट में, दैट इज अप टू यू वेदर इफ यू विश टू राइट 5.84 ओके, 5.82 ओके। एक आध बुक ने तो 5.819 लिखा है, तभी तो उसने 5.82 कर दिया होगा राउंड ऑफ करके। देखिए डबलेट स्प्लिटिंग को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 2p3/2 to 2p half of hydrogen atom is 0.365 सेंटीमीटर -1। कैलकुलेट कोरस्पॉन्डिंग सेपरेशन फॉर डबली आयोनाइज्ड लिथियम, तभी तो सिंगल वैलेंस बनेगा ये। फॉर डबली आयोनाइज्ड लिथियम Z is 3, हाइड्रोजन के लिए Z is 1, फॉर्मूला वही है Z की पावर 4 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप जानते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3, 3 की पावर 4 मीन 81। सो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो डेल्टा गामा यानी डबलेट स्प्लिटिंग फॉर लिथियम इज इक्वल टू 81 टाइम डबलेट टर्म सेपरेशन फॉर हाइड्रोजन। और ये डबलेट स्प्लिटिंग हाइड्रोजन में कितनी क्वेश्चन में दे रखी है, 0.365 सेंटीमीटर -1, तो 29.6 सेंटीमीटर -1 आंसर है। स्टूडेंट लास्ट में फाइनली स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, ये क्वेश्चन भी आया था, व्हाट इज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, derives expression for spin orbit interaction for one valence electron that we are talked about, even for one valence electron in case of non penetrating orbit। सारी डेरिवेशन यहीं तक वहीं तक करनी है जहां जैसे मैंने पहले किया। लेकिन अगर हम एक सेंटेंस और लिखते हैं, कंसिडरिंग स्क्रीनिंग ऑफ न्यूक्लियस बाय कोर इलेक्ट्रॉन, कोर का मतलब होता है इनर मोस्ट कंप्लीटली फिल्ड शेल्स, एटॉमिक कोर, atomic core includes nucleus as well as innermost completely filled shells. So considering screening of nucleus by core electrons, then doublet term separation delta gamma is equal to 5.84, वही है n क्यूब भी डाउनस्टेयर में, l डाउनस्टेयर में into l plus 1 डाउनस्टेयर में, लेकिन z की रिप्लेसमेंट z माइनस सिग्मा से हो जाएगी, पावर 4 ही रहेगी, फिर सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो यहां तक ये नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट की हमने स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन एनर्जी को डिस्कस किया फॉर सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन नॉन पेनिट्रेटिंग ऑर्बिट। थैंक यू।